Hello and welcome to Legacy IS Academy. So in today's video, we are going to discuss about, I would say, a small portion. ठीक है कि हमें पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर he had visited France and USA, France for AI Action Summit and USA, और यूएस में जाकर के उन्होंने कुछ मेजर डील्स साइन किए हैं. ठीक है. So today's video में we will be discussing about some of the defense deal. So there were n number of things which were discussed, but we are going to discuss about some of the major defense deals that has been signed between India and USA. ठीक है. So talking about the issues, अगर कुछ core agenda था before the meeting, we had an idea कि इन सभी चीजों पे discussion होगा ही. It was majorly defense ties. We were already expecting some kind of major defense ties क्योंकि कुछ deals थे which were pending for a very long period of time, and Donald Trump becoming the president of USA, we were positive that these deals will be signed. ठीक है. So some of the defense ties were signed, and एक और issue which was pending between India and USA was the trade issue, और trade में भी majorly tariff related issue. ठीक है. So there was one statement you would have heard कि Donald Trump at a media briefing he was saying कि एक time था कि Harley Davidson was not it was there were so many import duties to sell off Harley Davidson bikes to India that because कि इंडिया ने बहुत सारे import duties लगा रखे थे. ठीक है. तो हार्ले डेविसन को मजबूरी में एक फैक्ट्री खोलना पड़ा इंडिया में. Now that may not be true, but we definitely know कि import duties में at least for agriculture India follows a very high level of protectionism. ठीक है. So trade issues especially in agriculture was also discussed, but as we said कि यहाँ पे हम लोग agriculture नहीं discuss करेंगे. Here we are discussing only the defense ties between India and USA that was signed recently. So इसमें एक major achievement जो हुआ that was F-35. This is one of the this showstopper I would say कि जितने भी डिफेंस डील साइन हुए, जितनी भी एजेंसी कंपनीज के साथ डिफेंस डील साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, दिस वाज द शो स्टॉपर. ठीक है. F-35 is it's a fighter jet, fighter aircraft. ठीक है. सिंगल इंजन, सिंगल सीटर, सिंगल इंजन एंड सिंगल सीटर, और इसका जो मैन्युफैक्चरर है दैट इज लॉकहीड मार्टिन. Lockheed Martin has also welcomed this decision of USA that India will now procure F-35 fighter aircraft from USA, will buy. ठीक है. अब F-35 why is it so special is because कि ऐसा देखा गया है कि जिस भी कंट्री के पास F-35 रहा है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन या इजराइल, सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट ऑरा इन एयर डिफेंस. ठीक है. उनका उनका कैपेबिलिटी इन एयर डिफेंस वो मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ F-35. And F-35 has been usually granted to some of the most trusted friends of USA. ठीक है. So it is reserved for the most trusted allies of USA. So F-35 was also symbolic in this manner कि USA is trying to improve its relationship with India. ठीक है. But other than this, India would be the first non-NATO country and the first non-Pacific country also to own an F-35 once these procurements begin. एक बार F-35 इंडिया में आ गया तो then India will become the first non-NATO, first non-Pacific country to own these F-35s. ठीक है. इसके अलावा हमें ये भी जानने की जरूरत है कि F-35 को प्रोक्योर कर लेना इज नॉट दैट इजी. इट इज नॉट, डेफिनेटली नॉट. इनफैक्ट अगर आपके पास F-35 है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आई वुड से सप्लाई चेन का एक लॉन्ग पार्ट है जिसमें F-35 इज जस्ट द एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो ये एक तो ये पूरे सप्लाई चेन का एक्शन आपके इसका प्रोडक्शन आपकी कंट्री में इंप्लीमेंट होना चाहिए. So USA should not only agree for selling of F-35, इसके पूरे supply chain का requirement का production होना चाहिए. Plus they should also be permitting. अब F-35 का usage के लिए भी you need to seek permission from Pentagon. ठीक है. अब हर बार अगर यूएस से पूछ के अगर हम लोग लड़ाई करेंगे तो वी मे नॉट बी एबल टू, दैट विल लीड टू टाइम लैग, एंड इसकी वजह से कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो यूएस व्हेन दे आर रेडी टू सेल ऑफ F-35 और Lockheed Martin for that matter should also ensure कि ये पूरा सप्लाई चेन का प्रोडक्शन यूनिट इज प्रेजेंट इन इंडिया. ठीक है. It is not a standalone platform as we discussed.
एंड वी रिक्वायर पेंटागन्स अप्रूवल, पेंटागन का अप्रूवल चाहिए होता है, बट अदर देन दिस देयर आर सर्टेन अमेरिकन गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए होता है फॉर यूजेज ऑफ F-35। ये सारा अप्रूवल अगर चाहिए ले करके हम लोग लड़ाई लड़ने चलेंगे तो इट विल बी ऑब्वियसली अ लॉस, ठीक है। सो F-35 के साथ थोड़ा रिजर्वेशंस है, बट ऑल इन ऑल एज वी डिस्कस दिस इज द शो स्टॉपर, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था बिटवीन इन द डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। इसके अलावा सम अदर major defense agreement if we talk about, then we have Javelin anti-tank guided missiles. Javelin anti-tank guided missile. So this is a shoulder launched missile, as you can see here. This is a shoulder launched missile और इसके साथ आप fire and forget, मतलब once you launch this, it will locate the enemy and go and hit them, ठीक है। So this is a shoulder launched and man portable. A human being can carry this machine, ठीक है। इस तरीके की मशीन को इंसान भी कैरी कर सकता है और कंधे पे रख के लॉन्च कर दिया जाएगा, एंड दैट इज अ फायर फॉरगेट, तो वो टैंक को जाकर के मार देगा। अपार्ट फ्रॉम टैंक, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज एन एंटी टैंक मिसाइल, बट किसी भी एरियल टारगेट्स जो लो ऑल्टीट्यूड का एरियल टारगेट्स होता है, फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स, इन सब को भी ये मार सकता है, ठीक है। The next important defense deal between India and USA was Stryker infantry combat vehicle. Stryker infantry combat vehicle क्या होता है कि अभी तक हमारे पास जो भी combat vehicles रहते, they were running on conveyor belt. So conveyor belt से transportation बहुत ज़्यादा slow हो जाता है. Now Stryker infantry combat vehicle is a 4x4 and 4x8 also, ठीक है। So उसके सारे टायर्स में पावर रहेगा और एंड इट विल बी वर्किंग ऑन टायर्स, ये कन्वेयर बेल्ट का ऑपरेशन नहीं रहेगा। सो दैट इंप्रूव्स द कैपेबिलिटी, ये मोबिलिटी, इन्फैंट्री व्हीकल का मोबिलिटी में एक अलग ही आई वुड से इट वुड बी एन अचीवमेंट, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 9 पीपल, 9 मैन इन्फैंट्री स्क्वाड को कैरी कर सकता है। एंड ये ले लेने के बाद अगर इफ वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो ये डील साइन हुई है कि इंडिया शैल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द स्ट्राइकर इन्फैंट्री व्हीकल, but if we start manufacturing तो India would be the first foreign land, अब तक सारा प्रोडक्शन यूएसए में ही हो रहा था, but it would be the first foreign producer of Stryker armored vehicle, ठीक है। Now talking about one more achievement, that was P8I. P8I इसे पॉइडॉन भी कहते हैं, ठीक है। This is the production of Boeing and this is the aircraft that we are talking about, P8Is. P8Is majorly anti submarine warfare में होता है। So अगर आपको सबमरीन पर अटैक करना है या नेवल फोर्सेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, then you definitely require P8Is, ठीक है। So ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसका प्राइमरी इंटेंशन है, बट ये मैरिटाइम सर्वेलेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, मिसाइल लॉन्च करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, टॉर्पीडोज, और देयर आर अदर कैपेबिलिटीज ऑफ P8Is आल्सो, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा इन वाटर नेवी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा इफ वंस वी स्टार्ट प्रोक्योरिंग द P8Is, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये तो थे कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं जो हमें यूएसए से मिल रहे हैं, ऐसा इनका डील में लिखा गया है, ठीक है। बट व्हाट आर द अदर अग्रीमेंट्स दैट आर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इज रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट क्या है कि ये जो जैसा भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट रहेगा इसमें रेसिप्रोसिटी फॉलो की जाएगी, ठीक है। सो वी शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट that we are also one of the defense exporters. 21st, India is the 21st defense exporter in the world, ठीक है। But if we talk about the countries, किस किस कंट्री को हम लोग दे रहे हैं in terms of defense exports, तो the largest country which is the country which is buying the largest share of India's exports is USA. इसका मतलब यूएस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। वो टेक्निकल इक्विपमेंट से हो सकता है, लेट्स से नॉन टेक्निकल इक्विपमेंट्स ही होंगे, बट दे आर बाइंग ऑल ऑफ दीज, जैसे कहीं का बॉडी, दे आर बाइंग अपाचे हेलीकॉप्टर का बॉडीज एंड अदर्स, ठीक है। So when they say that we will be signing a reciprocal defense procurement, तो then there will be reciprocity, जो हम आपसे ले रहे हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, there will be reciprocity and we will be streamlining the procurement procedure. So streamlining of the procurement procedure and reciprocal supply of defense and goods and services is the intention of reciprocal defense procurement, ठीक है। Apart from this, we have signed also a deal called trust. Trust क्या है कि हम लोग सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना चाह रहे हैं। किस किस चीजों में? सप्लाई चेन टू बी रेजिलिएंट इन क्रिटिकल मिनरल्स, इन सेमीकंडक्टर्स,
in pharmaceutical and advanced material. इसका मतलब जो ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को, other than defense, of course there will be pharmaceutical also, advanced material also, but because we are talking about the defense deals that have been signed by India and USA, so here it comes. क्योंकि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स के मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल की सप्लाई में वी नीड सम हेल्प, ठीक है, एंड यूएस इज रेडी टू प्रोवाइड दैट रेजिलिएंट सप्लाई चेन, कि आपको सप्लाई चेन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दैट इज एन अश्योरेंस फ्रॉम यूएसए. दैट इज द डील दैट वी हैव साइंड विद यूएसए, ठीक है. So that is the second deal. There are two others that we should know. One is a compact initiative. Now compact initiative, I would again say कि जो भी deal sign किए हैं, this is the showstopper there. ठीक है, क्यों? क्योंकि this is not a deal of an equipment. एक मशीन, एक एयरक्राफ्ट, एक शिप नहीं खरीद रहे हैं. 10 साल का बकायदा, मतलब we are engaging with USA for a 10 long year period. और इन 10 सालों में क्या क्या करेंगे कि आप डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बनाओगे, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करोगे, स्ट्रीमलाइन एंड एक्सपेडाइट डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी. सो हम जो भी चीज आपसे खरीद रहे हैं उसको स्ट्रीमलाइन करोगे, स्मूदन करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. That is something very important. Why we are declaring this as the showstopper? क्योंकि compact initiative, as we discussed, कि ये एक सामान नहीं बेच रहा है. This is not a deal of one equipment, one aircraft, one ship and one submarine. नहीं, दिस इज अ डील ऑफ 10 years, कि हमारे पास जितने भी पुराने डील्स हैं उसे हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ज्यादा अलाइन कर पाएंगे, ठीक है. Then one final initiative between India and USA is the Asia initiative. Asia stands for Autonomous System Industry Alliance. Autonomous System Industry Alliance, इसका कहने का मतलब है कि जितने भी ऑटोनोमस वेपन्स हैं, जैसे यूएवी हो गए, बहुत सारे ऑटोनोमस लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं. सो ऑल दीज सिस्टम्स, या फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी में जिस तरीके की भी ऑटोनोमस सिस्टम्स, स्काडा सिस्टम्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं, वो सारे में टेक्नोलॉजी को लेकर के जो भी ट्रांसफर, जो भी रिक्वायरमेंट होगा इंडिया का, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय यूएसए, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स of the Indo-US defense ties, ठीक है. So with that we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.